السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، بہت اہم دن ہے کل کا، اور آج بھی ہم دیکھیں تو بہت مصروف ترین دن رہا۔ پاکستان جو ہے وہ میزبانی کرنے جا رہا ہے، اور یہ تاریخی طور پر پاکستان کے لیے بہت بڑا دن کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ سفارتی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، ویسے بھی اگر دیکھ لیں، تمام جریدے اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو اس میں پاکستان کا ذکر لازمی طور پر ہو رہا ہے۔ اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، جے ڈی وینس بھی پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور روانگی سے قبل انہوں نے میڈیا سے مختصر جو ہے گفتگو بھی کی تھی۔ اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں، اور ہم پر امید بھی ہیں کہ بہترین جو ہیں مذاکرات ہوں گے، اور بہترین معاہدہ بھی ہوگا اور حل بھی نکلے گا، اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ بہترین نتائج اس کے لازمی طور پر نکلیں۔ تو جے ڈی وینس جو کہ قیادت کر رہے ہوں گے امریکی وفد کی، اسٹیو وٹکاف اس میں موجود ہوں گے، جیرڈ کشنر اس میں موجود ہوں گے، اور جے ڈی وینس کے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت بھی دی جا رہی ہے یہ جو وفد آ رہا ہے امریکی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے نائب صدر خود ان مذاکرات کا حصہ بنیں گے، اور یہ 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی بھی امریکی نائب صدر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن تھے، انہوں نے بطور نائب صدر پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور وہ اوباما کا دور حکومت تھا، باراک اوباما اس وقت صدر تھے۔ تو اب یہ والا وقت ہے، اور ایرانی وفد جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیکر ہیں ان کے باقر کالیباف، اور وزیر خارجہ عباس اراکچی ہیں جو وفد کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو کل کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک جو اچیو کیا ہے پاکستان نے، پوری دنیا نے، 3 بر اعظموں کو جو باقاعدہ طور پر اس جنگ نے وہ کیا تھا، تنگی ہو رہی تھی، سب کو مشکلات کا سامنا تھا، افیکٹ ہو رہے تھے، تو ان کے لیے تو یہ ایک سائے آف ریلیف ہے، اور سب یہی امید کرتے ہیں کہ جو بہترین ہے آگے بھی معاملات چلے، اور امن جو ہے وہ قائم ہو، اور امن پوری دنیا میں قائم ہو، کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، امن پسند قوم ہے۔ رانا صاحب، بہت امپورٹنٹ دن ہے کل کا، اور سب کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ آج آپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھا ہوگا تو سب جہاں سے رپورٹ ہو رہی تھی چیز، وہ اسلام آباد سے رپورٹ ہو رہی تھی، اور پھر جس وقت جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی، مختصر گفتگو کی، پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا سے ہم بات کریں گے، لیکن تفصیلاً بات تب کریں گے جب ہماری بیٹھک ہو جائے گی اسلام آباد میں۔ ہر جملے میں اسلام آباد اور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاج تار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا پاکستان کا نام، پاکستان کا پرچم جی ہر اس ملک میں آپ کو نظر آئے گا، ہر اس ملک کے میڈیا پہ نظر آئے گا، چاہے وہ پاکستان کا بدترین مخالف ہو، جی، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، ان دونوں ملکوں کے اندر بھی پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا۔ اسلام آباد پاکستان ہے نا، جی جی، اور پاکستان کا نام یہ نظر آئے گا، مجبوراً بھی انہیں دکھانا پڑے گا۔ ان کے گھروں میں وہ دیکھا جائے گا، ان کے چوکوں میں، چراغوں میں، ان کے دفاتر میں، ان کے ملٹریز کے کیمپوں میں، ہر جگہ وہ دیکھا جائے گا۔ اور الحمدللہ پاکستان، میں نے کل کہا تھا پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان نے فیصلے کرنے ہیں، اور دیکھ لیں پاکستان فیصلہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے محفل کو سجا دیا ہے۔ جی، پاکستان کا محفل کو سجانا یہی ایک سب سے بڑی بات، یہی ایک سب سے بڑی بات ہے، اور یہی ایک اہم ترین بات ہے۔ اب مجھے بتائیں، دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ کیا کسی اور ملک میں یہ گئے؟ یہ ایک اہمیت نہیں رکھتا کہ کون آ رہا ہے، یہ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ مثلا یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں، میں صبح سن رہا ہوں کہ پہلے بھی 4 دفعہ یا 5 دفعہ پاکستان میں امریکہ کے بڑے بڑے ذمہ دار آ چکے ہیں، ہاں جی، ایران کے آ چکے ہیں۔ بھائی پہلے آئے تھے ایک ٹور کرنے، آج ہے تیسری عالمی جنگ کے خاتمے کے لیے آ رہے ہیں، آج اپنا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے آتے تھے ہم ان سے مانگتے تھے بھائی جان کچھ دے دیو، اب وہ ہم سے مانگنے آ رہے ہیں۔ جناب، اس خطے کے امن کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا یہ کرتے رہیے گا، اس خطے کے امن کے لیے جناب ہمیں آپ پر اعتبار ہے، اب اس لیے آ رہے ہیں۔ پہلے نا مہمان گھر آتا تھا، ویسے ہی آ گیا مہمان، آپ نے خدمت کر دی۔ اب مہمان درخواست کر کے آ رہا ہے، جناب
ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, مہربانی کیجئے ہمیں آنے کی اجازت ہے, تو ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں, ہم سب کچھ اپنا حاضر کر دیں گے چونکہ ہم مہمان نواز ہیں. یہ پاکستان کی ایک فتح ہے, اور آج پاکستان کا کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس فتح کو نہیں منا رہا. ہر شخص جو ہے وہ دعا گو بھی ہے, ہر شخص یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس پاکستان کو جو عزت ملی ہے میرے مولا, اب اس اگلا سٹیپ جو ہے اس پہ بھی ہمیں اور پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو جو نہیں بھی مسلمان اس کو بھی امن کے لیے لے کے جی امن ہو. اور اس امن کی راہ میں میں نے پھر کہا دو ہی رکاوٹیں ہیں, دونوں کا زوال شروع ہو گیا ہے, ایک اسرائیل کا اور ایک بھارت کا. بھارت کا زوال پچھلی مئی میں شروع ہو گیا تھا, اسرائیل کا زوال اس دفعہ شروع ہو گیا. وہ جو اسرائیل نے ایک بڑے ارادے کیے ہوئے تھے, بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی. یہ آج کی رات اور کل کا دن یہ صرف دن نہیں ہے, یہ ایک تاریخ بنے گی. تاریخ ہے بالکل, ایک ایسی تاریخ بنے گی جس تاریخ کے بعد تحریک بنے گی پوری دنیا کے اندر. یہ ایک تحریک بنے گی کہ اگر آپ کو امن چاہیے, اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے جس میں آپ کو ایک ایسا ملک چاہیے جس ملک کے اندر سکون ہو, جس ملک کے اندر آپ کی جائیداد نہیں ڈوب سکتی, جس ملک کے اندر طاقت ہے, جس ملک کے حکمران فوجی قیادت, حکمران تو بدلتے رہتے ہیں, فوجی قیادت وہ تگری ہے, وہ آپ کو انصاف دے سکتی ہے, وہ آپ کو تحفظ دے سکتی ہے, اس کے لیے پاکستان کا نام استعمال ہوگا. استعمال کیا ہوگا, پاکستان کا نام لیا جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. ہمیں انجوائے بھی کرنا ہے, ہمیں اللہ کے حضور گر گرانا بھی, دعا بھی کرنی ہے, اور اس لیے کہ نزلِ بد سے بھی بچے رہیں اور کامیاب بھی. بالکل ایسے ہی ہے. اسپوائلرز موجود ہیں, ہم بارہا اسپوائلرز کا ذکر کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ثاقب صاحب, وفد کی جو بات ہو رہی ہے کہ وفود نے آنا ہے, وفود کی سطح پہ مذاکرات ہونے ہیں, اور وفود کے جو اراکین ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس ذہنیت کے حامل ہیں. کیونکہ پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو جے ڈی وینس کا نام سن کے شاید جو دوسرے فریق ہیں وہ بھی اگری کر رہے تھے کہ چلے ٹھیک ہے, سین وائسز ہونی چاہیے. بالکل, اس جو امریکی وفد ہے اس میں بھی جو جے ڈی وینس کو اس حوالے سے تھوڑا سا بہتر سمجھا جا رہا ہے, ایک قابل قبول جو کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے. تو یہ 5 شخصیات کے نام ابھی تک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں امریکہ کی جانب سے, جے ڈی وینس, اور اس کے بعد سٹیو وٹکاف, اور داماد جو ہیں ٹرمپ صاحب کے جیرڈ کوشنر, اور جو ایرانی سائڈ سے عباس اراغچی ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ ان کے اسپیکر ہیں باکر کالیباف. تو اگر مختصراً اگر ہم بتائیں آپ کو, تو یہ جو جے ڈی وینس ہیں ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے یہ نائب صدر بنے ہیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی اسائنمنٹ ان کے جو وہ آئی ہے, جو جس کے لیے جو ہے یہ آ رہے ہیں. اور جو یہ 42 ایئرز کے ہیں, 2022 میں یہ ریپبلکنز میں پارٹی میں شامل ہوئے, سینیٹر بنے, اور 24 میں نائب صدر بن گئے. 2016 میں یہ ٹرمپ کے خلاف تھے, بہرحال بعد میں ان کی اپنے میں صلح صفائی ہو گئی. اور ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو امان کی جو وہاں پہ ثالثی میں ہو رہے تھے مذاکرات اس 28 فروری کی جنگ سے پہلے, تو اس میں باقی 2 ان کے لوگ تو سٹیو جو وٹکاف ہے وہ اور کشنر جو ہے وہ تو موجود تھے, لیکن یہ نہیں تھے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان پر عدم اعتماد تقریباً اور کسی نہ کسی صورت میں ایران کرتا رہا ہے. اور اس پر کہ کم سے کم یہ ہے کہ, اور جو جے ڈی وینس کے حوالے سے ایک اور تجزیہ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے ڈیورنگ وار جہاں پہ روبیو اور جو پیٹ تھے جو ان کے وزیر جنگ تھے, ٹرمپ بڑے سخت بیانات دیتے رہے ہیں, جو جے ڈی وینس ہے انہوں نے تھوڑا سا جو وہ بیانات کے لحاظ سے معاملہ تھوڑا سا دھیما رکھا ہے. تو اس سارے تناظر میں جے ڈی وینس کی بڑی اہمیت جو سمجھی جا رہی ہے. عباس اراغچی دوسری طرف کے جو سربراہ ہیں مذاکراتی ٹیم کے, بہت ایکسپیرینس ہے, 1962 ان کی پیدائش ہے, 79 میں وہ پاسداران انقلاب میں, اور اس کے بعد 90s میں انہوں نے یہ اپنا وہاں پہ دفتر خارجہ جو ایران کا ہے وہاں کام شروع کیا, 96 میں پی ایچ ڈی کر لی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے 2000 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ایران کے جوہری ان کی تنصیبات, جوہری مذاکرات جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں, ان میں وہ ان ٹیموں میں شامل رہے ہیں. 2013 میں جب جو مذاکرات شروع ہوئے تھے تو 2015 کی ٹیم میں بھی وہ شامل تھے. تو اس لحاظ سے جو اراغچی ہیں, عباس اراغچی بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اور سارا کچھ ان میں جو شامل ہے.
जेडी वैंस भी रान साहब अपने माथे पे तमगा जो लेके जाना चाहेंगे वो यही लेके जाना चाहेंगे कि जो मेरे पास एक असाइनमेंट थी उसको मैंने बखूबी और अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है हल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नोबेल इनाम का फिर से एक ट्रेंड चल रहा है कि जी कि नोबेल पीस प्राइज़ की अब क्यों नहीं बात हो रही है, तो अब बात होनी चाहिए, वैसे वक्त है। अब तो बनता है, पाकिस्तान को बनता है, पाकिस्तान में ये फील्ड मार्शल साहब को बनता है, लेकिन ट्रंप को तो बनता ही नहीं था। ट्रंप को तो देना भी नहीं बनता था और उनको बनता भी नहीं था। अब असल मामला अब आया, पाकिस्तान इंडिया जंग जो थी ना जी, पहले जीत चुके थे। वो ये ट्रंप साहब का कहना कि मैंने रुकवा दी है, वो ना रुकवाते तो इंडिया जाता ना। उसके बाद बाकी जितनी उसके बाद के हालात देखें तो ट्रंप ने तो बुरा ही किया है। मतलब ट्रंप अगर एक जंग रुकवा देता, सिर्फ एक जंग, गजा, और गजा के लोगों को आप इंसाफ दे देते, वहाँ पे खून खराबा बंद कर देते, तो ट्रंप के लिए दुनिया की हर चीज़ हासिल हो जाती जी। अब एक बहुत बड़ा मसला था जो पाकिस्तान ने हल किया, और नोबेल इनाम तो इधर मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मुज़ाकरात है ना, जी, हम दुआ कि अल्लाह इसे कामयाब करे। दोनों तरफ मंजे हुए लोग हैं। ईरान के दोनों अफराद जो हैं वो लेके आ रहे हैं अवाम का मैंडेट, बेहतरीन दिमाग है, बेहतरीन दिमाग भी है। और ज़हन में रखिएगा, वो इन हालात में आ रहे हैं जिन हालात में उनका कोई भी मेन शख्स जो है महफूज नहीं था। जी, ऐसे ही है। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान पे यकीन है जी, कि यहाँ पे हम महफूज हैं। वो आ रहे हैं, और वो जहन में रखिएगा कि ईरान के अंदर जो लोग कौम निकली हुई है ना सड़कों पे, उनके भी कुछ मुतालबात हैं जी। और अगर आप ये समझेंगे कि आप उन मुतालबात के बगैर को फैसला करके चले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल सी हैं। ईरान में लोग उनके हक में निकले हुए हैं, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ निकले हुए हैं, जी, इसराइल दोनों मुल्कों में ट्रंप के खिलाफ दोनों मुल्कों में ट्रंप के खिलाफ निकले हुए। लिहाजा ये चीज़ जो है बड़ी है। और लेकिन पाकिस्तान ने एक मेज़ सजा दी है, पाकिस्तान का जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। फ़र्ज़ बनता है इन दोनों ताकतों का, हाँ, और इनके पीछे अगर कोई खड़ा है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि कुछ लो पे इसे मामले दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। अगर ये कहे कि सारे मामला एक के हल हो जाए और साथ दूसरा कहे कि हमारे हल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब सचती है तो कुछ देकर फिर उठना पड़ता है, कुछ फिर ही मिलता है। यस, पहले होता था बहुत कुछ दे के कुछ मिलता है, अब कुछ दो कुछ लो, कुछ लो। ये एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि इस वक्त मेज का आधा हिस्सा ईरान के पास है जो पहले नहीं हुआ करता था। ये फर्क है इस दफा। देखिए ईरान के पास इस वक्त ना एटम बम से भी बड़ा बम जो है ना वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, ईरान को तब पता चला है कि छोड़ो यार वो किस तरफ हम गए हुए थे, ये हमारे पास ऐसा है कि जिससे एक साल के अंदर ईरान इस खित्ते के अंदर एक बेहतरीन कुव्वत बनता है। अब उन्हें पता चला, जिसने कहते थे ना हमारे बड़े कहते थे पुत्र पटवारी ने पता लग जाए ना उसकी ताकत की है, तो पटवारी तो अन्नी बात हुए, तो वैसे आजकल पाई है उन्होंने। इसी तरह ईरान को अब पता चला है कि अब उसके पास असल ताकत क्या थी, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले ये चीज़ें कभी किसी जंग में डिस्कस नहीं होती थी, किसी जगह ये डिस्कस नहीं होती थी, अब डिस्कस भी होती हैं। ना सब ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा कि ईरान सिर्फ उसी पे खेलेगा, ईरान उसी पे ही खेलेगा। ईरान ने जो करना था, ईरान ने एक तो अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने दिखा दिया कि आप हमारी सड़कें तबाह कर दें, आप हस्पताल तबाह कर दें, लीडरशिप को आप लीडरशिप ख़त्म कर दें। लेकिन इतनी लीडरशिप मौजूद है कि आप यहाँ तो 1 करोड़ कुछ लाख जो अफराद हैं उनको मारें तो फिर तो ठीक है। अगर आप उनको नहीं मार सकते तो फिर आप उसको आपको जीतने नहीं हम देंगे। मतलब आप जो चाहते थे कि आप रिजीम चेंज करना चाहते थे वो हम आपको नहीं करने देंगे। रिजीम दर रिजीम हमारे पास मौजूद है। अगर चेंज हो सकती तो ये मसालत ही ना होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, आपने हुर्मुज़ की राना साहब बात कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ एक बड़ा मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो यूरेनियम भी है, लेकिन यूरेनियम के ऊपर बहुत हद तक मामला तय हो गए थे जब पिछली दफ़ा बैठे थे और उसके बाद हमला हो गया था। अब जो ज़्यादा बात हो रही होगी, वैसे तो जेडी वैंस ने भी कहा कि जी 7 चीज़ों पर तो मसला नहीं है, 3 चीज़ों पर मसला है। यकीनन उसमें एक आपदा हुर्मुज़ है, यकीनन उसमें एक लबनान वाला मामला है, और यकीनन उसमें एक जो चीज़ है वो यूरेनियम की अफसूदगी है।
بالکل اس میں اسٹریٹ آف ہورموز جو ہے وہ اس پہ ایشو موجود ہے، اور میرے خیال میں اس پہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور ایران وہاں ٹول جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی بھی بات کر رہا ہے، جس کے حوالے سے برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ایسے جو آبی گزرگاہیں ہیں بین الاقوامی، وہاں سے اس طرح ٹول ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جا سکتا. تو وہ ایک ایشو موجود ہے، اگرچہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ بھی خبر اب چل رہی تھی آج کے ایرانی کرنسی میں وہ جب لینا چاہ رہے ہیں، تو ایران اس کا یہ بھی ایک ہے، اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بات ہو بھی جائے کہ وہ تعمیر نو وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے بھی یہ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن جو یو ایس ہے، جو ٹرمپ ہے، وہ تو اس کو اوپن کرنے کی بات کر رہے تھے. اور ثاقب صاحب آپ کو پتہ ہے، معذرت سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ریکارڈ ایرانی کرنسی خریدی گئی ہے. جی، دنیا کے اندر ریکارڈ ایرانی کرنسی خریدی گئی اور ایرانی کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی ہے. پاکستان کی مارکیٹ کے اندر میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں 6 گنا، جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی پاکستان کی مارکیٹ میں 6 گنا اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی قدر بڑھ گئی ہے، 1 کروڑ کا نوٹ ہی نہیں مل رہا، مل ہی نہیں رہا، یہ بھی حقیقت ہے. جی ثاقب صاحب. یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بات. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایرانی کرنسی میں وہ پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک اس میں بڑی وجہ یہ بھی، پھر نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس میں ایک تو 2015 کا وہ معاہدہ بھی موجود ہے جس میں افریقین نے طے کر لیا تھا. ٹرمپ صاحب وہاں سے نکل کے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے دوبارہ وہیں پہ آ گئے ہیں. تو اور 28 فروری سے پہلے بھی کافی چیزیں طے ہو گئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ بات چیت ہوئی تو اس میں بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر کمپنسیشن اور سینکشنز کی بھی بات ہے، کمپنسیٹ بھی کیا جائے، سینکشنز ختم کی جائیں. ابھی جو آج ایرانی جو اسپیکر ہیں ان کی بھی یہ ایک آئی تھی کہ جو ان کے حوالے سے یہ کہا تھا جو بلاک کیے گئے ہیں ان کی اثاثے، وہ کھولنے کے حوالے سے بھی تھا کہ نیگوسیشن سے پہلے. تو یہ کمپنسیشن اور سینکشنز بھی ہیں. پراکسیز کی بھی بات امریکہ جو ہے کرتا ہے. میجر بات وہی آپ نے جو بتا دی کہ 3 ہی پوائنٹس بنتے ہیں، ہورموز بنتا ہے، جو نیوکلیر پروگرام بنتا ہے، اور یہ جو کمپنسیشن سینکشنز کی بات کرتا ہے ایران کے سینکشنز جو ہے وہ ان سے اٹھائی جائیں. اگر تو فریقین بیٹھ گئے کھلے دل کے ساتھ، جس طرح جو جے ڈی وینس وہاں سے جب چلے ہیں امریکہ سے، تو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کھلے دل سے آئے تو چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان 3 پوائنٹس پہ ہی مینلی بات ہونی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ میز پر بیٹھنے لگے ہیں. تو یقیناً اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان کے عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ. سر بہت امپورٹنٹ ڈے ہے کل کا، اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک چیز کہ پاکستان میڈییٹر ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے. سب ممالک اپنے طور پر ایک جو ہے نام دے رہے ہیں، لیکن جو بھی نام دے رہے ہیں وہ پاکستان کی تعریف ہی کر رہے ہیں. سر کل کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے اور پاکستان کی امپورٹنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ صدی کا جو اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ ایک لحاظ سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ پاکستان کی کاوشوں، کوششوں اور پاکستان پر اعتماد کی وجہ سے الحمدللہ ایک اس کے اندر وقتی طور پہ یہ مؤخر ہوئی ہے، اور اللہ کرے گا یہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی. جہاں تک اکنامک وار ہے وہ تو شروع ہو چکی ہے، اور اس کا ابھی تک اختتام کوئی دور دور تک نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس جنگ کے جو مختلف زاویے ہیں ان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خد و خال ظاہر کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایک اکنامک وار ہے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی. اب جو اس کے اندر صورتحال ہے اسلام آباد کی، دیکھیں اسلام آباد کا مقصد لوگوں کو بٹھانا ہے، فریقین کو، اور اپنے تئیں جو ہم سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں. پاکستان کا کردار اس لیے بھی بہت احسن ہے کیونکہ پاکستان نے اس ساری چیز کا کوئی ایسا کریڈٹ نہیں لیے، دوسرے لفظوں میں شو نہیں مار رہے، لیکن ہم واقعی طور پر سنجیدگی سے کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جیرڈ کشنر
और स्टीव विटकॉफ के ऊपर लोगों को एतराज था। अब जो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आ रहे हैं, जो मुस्तकबिल में एक बहुत ताकतवर उम्मीदवार हैं नेक्स्ट सदारत के लिए, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ईरान का भी उनके ऊपर एक एतबार मौजूद है और वो चाहते थे कि जेडी वेंस के बगैर ये मुज़ाकरात ना हों, और फिर उन्होंने मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अपनी बात को मनवाया भी है। अब्दुल्ला गुल साहब, अभी हमने बात की है दो एक वाक़यात की। क्या इसराइल बेलगाम गोरा है? क्या इसराइल अमेरिका के बगैर सब कुछ कर रहा है? क्या इसराइल के इन तमाम हरकत के बाद दुनिया की सुपर पावर्स जो है वो खामोश ही रहेंगी? वो बिल्कुल बेलगाम नहीं है। वो असल में अमेरिका की ताकत के ऊपर एक आकाश बेल की तरह वो काम करता है, और जब ये किसी एक जगह को सुखा देती है, एक दरख्त को, तो फिर वो दूसरी डाल के ऊपर चला जाया करते हैं। तो ये अब जो इजराइल की ताकत है, इजराइल तो कुछ भी नहीं है। अगर इजराइल को तो आपने देखा था हमास ने उधेड़ के रख दिया था और आज तक वो उसको उधेड़ रही है। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि जब अमेरिका उसको ताकत देता है, उसको रीइंफोर्समेंट्स भेजता है, उसको डिप्लोमेटिकली जाके वीटो करता है, तो वो इजराइल को ताकतवर बनाती है। अब आप देखें खुदा की करनी कि जो इस टाइम पे नेतन्याहू की हालत है, वो तो लग रहा है कि वो जेल जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा कि वो इस जंग का जो भी नतीजा निकलेगा, मुझे नहीं लग रहा कि वो 27 अक्टूबर में होने वाले जो इलेक्शंस हैं इसराइल के अंदर, वो उसको भी, मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले ही उसकी हुकूमत गिर जाएगी। और दूसरा आदमी जिसने इकबाल जुर्म कर लिया है अपना, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर परसों तरसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो उसके अंदर तो उन्होंने कहा कि तमाम जो ये कार्रवाई ईरान के अंदर हुई, जो कि जंगी असूलों और कायदों के खिलाफ है, वो कहते हैं कि मैंने उसका हुक्म दिया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर इंटरनली और एक्सटर्नली और लीगली डेवलप हो चुका है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहता है, लेकिन इजराइल इसके अंदर किसी सूरत चाहता नहीं है कि ये खित्ता पुरअमन हो, और वो चाहता है कि कोई एक मुल्क वो जरूर उसको इंगेज रखे। एक मुल्क का मतलब यह है कि फिर तमाम मुल्कों में आग लग जाएगी, और ये आग तो कभी भी शोला बन सकती है। इसलिए ईरान अपनी जगह दुरुस्त है कि वो उसको प्रॉक्सी नहीं कह रहा। पहली बात यह है कि ये ईरान की प्रॉक्सीज नहीं है, बल्कि ईरान के एलाइज हैं, और एलाइज का साथ देना ये उनकी ज़रूरत है, और वो मुस्तकबिल की जो चीज़ें हैं उनको सामने रखे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी मुआहदात हुए, चाहे वो गजा पीस बोर्ड के हवाले से थे या उससे पहले जो मुआहदात हुए, हर बार इजराइल ने इसको सैबोटाज किया। तो ये सैबोटाज करने का जो अमल है, ये कब तक जारी रहेगा? क्या अमेरिका अपनी सॉवरेनिटी और अपनी इंडिपेंडेंस ये बताइएगा कि जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो इस पीस प्रोसेस में जो लीड कर रहा है, फिर पाकिस्तान ने जो है वो ये पहले भी इसमें जो सीज़ फायर हुआ और अब की बार जो एक आलमी जंग रुकवाने में किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, दुनिया पूरी जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। भारत की मैं बात करूँगा, जो नरेंद्र मोदी हैं, जयशंकर हैं, ये पाक भारत जंग अभी नहीं हुई थी, उससे पहले के कुछ बयानात थे, उनसे जब ये पूछा जाता था कि पाकिस्तान, तो वो कहते थे कि वो तो इररेलेवेंट हैं, उनकी तो ऐसे मतलब हम तो एक सुपर पावर पता नहीं क्या क्या वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे। और पहले उनको पाक भारत जंग में जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान ने वो जंग जीती, और अब जो है वो वर्ल्ड वाइड जो पाकिस्तान की सफारतकारी के गुण गाए जा रहे हैं। भारत को यह जो वहाँ बहुत शोर मचा हुआ है, और उनको जो है वो आप आग कह सकते हैं लगी हुई है कि ये हो क्या गया है। अगरचे वहाँ की जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ कर रही है, और ये भी कह रही है कि कम से कम जो एनर्जी का क्राइसिस बन रहा था वो पाकिस्तान की वजह से अब जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ये हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वहाँ को सी ऐसी वॉइसेस भी मौजूद है। तो भारत के किरदार पे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा।
देखिए भारत का एक ही किरदार है कि उसका कोई किरदार नहीं है। इस वजह से उसको जो उसका किरदार है उसको अगर सीने पे मूंग दली जा रही है तो इंशाल्लाह वो तो हम दलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये राणा साहब रोजाना उनके ठीक ठाक उनकी क्लास लेते हैं। तो मकसद ये है शाकिर साहब के इस टाइम पे जो सूरत हाल बन रही है, आप देखें कि ये क्यों वो एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्यों एग्रेसिव हो रहा है। इसका मतलब है वो वीक हैं। तभी कमजोरी जो होती है, जब इंसान कमजोर होने लगता है तो वो गाली गलोच के ऊपर उतरता है। यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यही काम जयशंकर और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जब इंसान ताकतवर होता है तो वो कंसेशन दिया करता है, रिलैक्सेशन दिया करता है। इसका मतलब है कि सबको अपने हाथों से ताकत फिसलते नजर आ रही है। यहाँ अरब दुनिया का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। कुछ अरब ममालिक जिन्होंने शायद ये फैसला कर लिया कि उनका मुस्तकबिल इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ और भारत के साथ जुड़ा है, तो मैं उनके लिए एक मशवरा दूंगा कि देखिए बात यह है कि वो रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हो रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि जब एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है जिसकी जड़ें इस्लामाबाद में नजर आ रही हैं, इस पीस टॉक के अंदर इंशाल्लाह ताला फायदा होगा, ये मुझे अंदाजा है। मेरे इतलात के मुताबिक जो आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हैं, 7 के ऊपर तकरीबन एक नीम रजामंदी आ चुकी है और बाकी 3 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर यूरेनियम की एनरिचमेंट है। ईरान अपने जो मेडिकल सहूलत के लिए और अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना चाहता है और वो मुझे लगता है कि रखेगा। बिकॉज अमेरिका अभी इस स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नहीं है कि वो डिक्टेट करे टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से पहले कहा गया कि जेडी वेंस नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद ईरान ने भी रिलक्टेंस दिखाई। फिर इसी तरीके से हमने बाकी भी देखे मामलात के ऊपर। जब लबनान का वाक़या आया तो भी उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, वहाँ अब अमेरिका में मुज़ाकरात होंगे। हाँ, ये बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि आप देखिए ये क्यों हुआ। क्योंकि लबनान और इसराइल के मामले में पाकिस्तान क्योंकि फरीक उस तरह से इसराइल को तो दावत नहीं दे सकता ना, क्योंकि हम तो उसको ना कबूल करते हैं ना करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए उसकी जो बेसिक्स हैं वो तो पाकिस्तान में तय होंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो नीटी ग्रीटी है वो आपने देख भी लिया कि वो सिफारती सतह के ऊपर है, यानी कि उनके सफीर हैं लबनान के और अमेरिकन सफीर हैं, तो वो उस लेवल के ऊपर बातचीत होगी, यानी कि उसकी जो डिटेल्स ऑफ दी। अब्दुल्ला गुल साहब, आप सर अभी वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जब एक तब्दीली हो रही है और वो इस्लामाबाद में हो रही है और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है ये सारा जो स्ट्रक्चर नया बनता हुआ। सर एक सुपर पावर थी, गोर्बाचोव थे, 90s का ज़माना था, 1991 का ज़माना था और उन्होंने स्टेक पे लगा दिया उसी सुपीरियरिटी को और उसी सुपर पावर को। क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी आज का जो आप दौर देख रहे हैं गोर्बाचोव के तौर पर तो नहीं याद किया जाएगा? देखिए गोर्बाचोव जितना भी था, उसने पेरेस्ट्रोइका किताब लिखी थी, बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव का इशू यह था कि उसने ह्यूमिलिएट नहीं किया था। उसके दौर के अंदर रशिया के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर कोई मुजाहरे नहीं बपा हुए थे। देखें इनके मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, फौज में बगावत शुरू हो गई है। ये ऐसे ही नहीं ये जर्नैल फारिग हो रहे, ऐसे ही नहीं इस्तीफे आ रहे। आप देखें अटॉर्नी जनरल का भी उसने भी वहां से उसको भी निकाल दिया गया, दीगर लोगों के भी मसाइल आ रहे हैं। जेडी वेंस का भी एक बहुत बड़ा इशू है। जेडी वेंस जहां एक अहम आदमी है और फिर मुस्तकबिल के सदारती उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका 2021 से पहले उनके ट्वीट ऐसे खतरनाक थे जो उनको बाद में वहां डिलीट करने पड़े जब 2021 में बने। और डोनाल्ड ट्रंप को वो पोटेंशियल थ्रेट भी देखते हैं। अब साथ ही साथ ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं कि जी जेडी वेंस जो है वो काम करेगा। और पहले दिन से ये जंग के हक में नहीं थे, ये बल्कि उसकी मुखालफत कर रहे थे। और आपने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने नेतन्याहू को भी कई दफा इस बात के ऊपर कोसने दिए थे। तो ये नजर ये आ रहा है कि अमेरिका एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है जिसमें यूरोप को वो दोबारा अपना इत्तेहादी बना ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने आइसोलेट कर दिया। और अगर जेडी वेंस कामयाब हो जाता है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर, और मुझे लगता है कि जेडी वेंस को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की
भरपूर सपोर्ट हासिल है, उनकी मिलिट्री की सपोर्ट हासिल है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईमा के खिलाफ जो अब आप देखें उनकी आईज एंड ईयर्स तो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं। जैरेड कुशनर वही आदमी है जिसके घर में आके अमेरिका में नेतन्याहू रहता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जब बैरिस्टर सलमान सफदर अंदर मुलाकात करके आए हैं तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो उस तरह की नहीं हैं जो पहले लग रही थी या गवर्नमेंट बता रही थी। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी वजह से अपना जलसा करना था उसको मुलतवी कर दिया है, नई तारीख भी दी जाएगी। और सुहेल आफरीदी ये बता रहे थे कि अब शायद केपी में 10 रोज़ के अंदर जलसे का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर। सर, ये जो 10 रोज़ के अंदर जलसे की बात की गई है कि वो अब केपी में किया जाएगा, यानी कि अभी फिर ये जो सूरत हाल को देखते हुए, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए पंजाब का या मरकज़ का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला तो शायद अभी चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तारड़ साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपको याद होगा कि ये भी जो 9 अप्रैल वाला जलसा था, ये इमरान खान साहब ने ही इंस्ट्रक्शंस आई थी जेल से कि इसको ना किया जाए। और ये उसी की एक कड़ी थी कि जब पाकिस्तान के ऊपर कभी भी कड़ा वक्त आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे जो मामलात विदिन दिस कंट्री हैं उनको पीछे छोड़ के, अपनी तहरीक को पीछे छोड़ के पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी हो गई। आपने जब पिछले 10 मई को इंडिया वाला इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की यही कॉल थी कि बिल्कुल जब से जुलूस आप ना करें और पाकिस्तान के लिए आप सब पूरी कौम के साथ खड़े हो जाएं। तो आज भी यही सूरत हाल है, और आपने बिल्कुल ठीक किया, आपकी ऑब्जर्वेशन है। बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारे अपने प्रोविंसेस के अंदर, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, वो हमारी चल रही है और उसको हम बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। और बिल्कुल हम जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो हमारी जो आईनी और कानूनी हक है हमारा, उसको हम जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये आप करते रहेंगे, ये होता रहेगा। मेरे पास जो खबर है, खान साहब ने कहा है कि अभी आप पंजाब या किसी ऐसे सूबे में मत जाए जहाँ पे कारकुनों की गिरफ्तारियाँ होती हैं या मामला किसी और तरफ जाता है। इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुहर्रम से पहले एक फ़ाइनल कॉल होगी, इसमें क्या है? देखिए राना साहब, जब ये नेगोशिएशंस की टेबल और इस हवाले से डिस्कशंस हो रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द हमारे पास आया था और उन्होंने आकर हमसे रिक्वेस्ट की थी जलसे को कैंसिल करने के हवाले से भी, और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी। और हमने उनसे इत्तफाक भी किया था कि, और बल्कि उनको ये बात बार बार बावर भी करवाई थी कि हम ये बड़े अरसे से आपसे कहते चले आ रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आई है इस मुल्क के पाकिस्तान के पास, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पहले भी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर हमारे पास रही, लेकिन हम उसको सही तरह कैपिटलाइज नहीं कर सके। तो इस दफा अगर अल्लाह ताला ने एक मौका हमें दिया है, यहाँ पे हम इस वक्त लाइमलाइट के अंदर हैं, हम लोग इस वक्त फ्रंट लाइनर हैं, की प्लेयर हैं सारी नेगोशिएशंस के, सारी मीडिएशंस के हवाले से, तो इसको खुदारा जाया ना होने दीजिएगा। बल्कि आपको चाहिए ये कि आप सियासी जो अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर है, आपको मौका है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप हुकूमत वक्त हैं कि आप इससे फायदा उठाएं। और आप ये जो आजकल जो टेबल सजने जा रही है इसके अंदर आप लीडर ऑफ द हाउस तो मौजूद होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट जो आपके इसहाक डार साहब हैं वो भी बाय डिफॉल्ट मौजूद होंगे। तो इसके अंदर क्या मुजायका है कि लीडर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली महमूद खान नचकज़ई और लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है, उनका एक लिंक भी बनता है ईरान के साथ, तो उनको भी इसके अंदर बिठा लिया जाए ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि पार्लियामान जो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा है वो आज साथ खड़ी है। तो पाकिस्तान के काफी सारे मसाइल शायद इस तरह हल हो जाएंगे जिस तरह कल जो है
गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने आकर डायलॉग भी किया और हमारे साथ बात भी की और उसके बाद डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल भी किया, इंटरनेशनली डिप्लोमेसी भी ये अच्छी कर रहे हैं, तो हमें तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ आपको जिस तरह आपने बात की कि इमरान खान, अच्छा सर ये बता दें, चलें इससे तो वो तो पता लग गया, कितने दिन का टाइम तय हुआ है कि इसके बाद टेबल सजेगी? देखें टेबल सजने से मुराद ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनके आपकी और हुकूमत की, क्योंकि हाल ही मुस्लिम लीग तो नहीं आई आपके पास, तो बाकी सियासी जमातें भी आई हैं ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है राना साहब। इसके अंदर अभी आज तो जो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज हैं, जो वफूद हैं, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और ये टाइम क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं है, ये 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो जितना टाइम लगेगा जैसे इंशाल्लाह ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और ये अमन जो है पूरी दुनिया के अंदर कायम होता है और ये डिग्नेटरीज वापस जाती हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये हमारे भी जो पीस टॉक हैं विद इन पाकिस्तान ये भी रिज्यूम हो जाएंगे। साकिब साहब, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो सलमान सफ्दर साहब मिल के आए हैं उन्होंने 2-3 चीज़ बातें जो है वो बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में अहम की हैं। एक तो आँख का मामला उनके बकौल वहीं पे खड़ा है जहाँ पे वो इससे पहले जो वो गए थे। अब आई डोंट नो कि वो किस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जब ये सवाल कुछ जो है वो ज़राए के सामने रखा गया कि क्या जब वो पहले गए थे और अब गए हैं तो उसमें कितना फ़र्क है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, आँख उनका मामला उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। एक बात। दूसरा जो कैद तन्हाई की बात उन्होंने की है कि एक अज़ियतनाक किस्म की कैद तन्हाई, तो ये 2 तो बड़े सीरियस इशू हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि पहले ज़मानतों पे आप दलाइल दें, अपीलें तो ताख़ीर हो जाएगी, उसमें एक दिन गुजारना जेल में बड़ा मुश्किल है। तो इस पर क्या स्ट्रेटजी PTI की होगी आने वाले दिनों में? अभी तो चले 2-4 दिन ये चलेंगे मुज़ाकरात। लेकिन साकिब साहब बड़ा बर्डनिंग क्वेश्चन है आपका और इमरान खान साहब की सेहत को लेकर हमें बड़ी ही जो है वो हम तशवीश का शिकार हैं। हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया है कि खान साहब की जो आंख का मामला है इसको ठीक किया जाए और इसके लिए जो प्रॉपर एक हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन हुकूमत की हटदर्मी है और फिर बार बार हम ये कह रहे हैं कि कानून के अंदर एक चीज़ मौजूद है जिसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब हमारी वो सस्पेंशन क्यों नहीं सुन लेते? और उसके बाद जब खान साहब के लिए मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को भेजा है तो वहाँ से भी ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं। देखिए अब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है बीइंग पाकिस्तानी, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की, हम तो वो अदा कर रहे हैं। हमने तो अपनी सारी चीजें, हमारा एक एक दिन, एक एक मिनट बड़ा मुश्किल है जब खान साहब से ना मुलाकात है, फैमिली की उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है, तो हम लोग तो एक इज़्तिराब की कैफियत में हैं। लेकिन पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इस वक्त, अगर हमने अपनी कुछ चीजें जो है फॉर द टाइम बीइंग उनको पसे पुश डाला है, लेकिन अब ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोगों ने किसी चीज के अंदर जो है वो थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया है, तो ये भी अब जो आईनी और कानूनी इमरान खान साहब के लिए रास्ते अवेलेबल हैं, जो उनका हक बनता है कि उनको इन दिनों के अंदर दें ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के अंदर आए और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक बड़े अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है साकिब साहब, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप जितनी मर्जी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अच्छी कर लें, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपके मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेहतर नहीं होगी। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपके मुल्क के ऊपर जिस तरह की यूरोपियन कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई, जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से आई, आपके मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आई हैं, जो आप बार बार अपने जो है एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की वायलेशंस कर रहे हैं, इन सारों को लेकर अब हुकूमत के पास वक्त है कि अगर पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है तो उसको प्रिजर्व करें। और उसकी सबसे आला मिसाल ये होगी कि क्योंकि दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को लेकर, उनकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को लेकर आवाज बार बार उठती रहती है, तो आज हुकूमत जो है उन सारी चीजों से बालातर होकर इमरान खान साहब को जो आईनी और कानूनी उनकी जो रास्ते निकलते हैं वो उनके लिए खोले जाएं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए भी आसानी होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।